नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNR के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणक्कम। और क्या Avariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, and ni hao in Chinese and konnichiwa in Japanese, that too, and we'll add a few more languages by the time we come around tomorrow. So Pradeep ji, it's all getting to be a bit confused. I'm not really sure what the BJP intends to do as far as West Bengal is concerned. Do you think they have the guts to actually go out there and considering what the President Draupadi Murmu wrote, where she was obviously she was talking about the incident, the gang rape and murder of this doctor in Calcutta, in the R.J. Kar Medical College. Do you think the BJP would actually go out and impose President's rule in West Bengal? Do you think they might do that? I mean, doubt it. past 10 साल में तो किए नहीं, in spite of occasions where they could have. They have not done that. They have broken parties and defeated the governments and installed new governments. But ये नहीं किया कि कोई elected governments को constitutionally dethrone करे. It has never happened. Where BJP is concerned, they have not done it. But so unlikely to do it now. Yes, they will not. And unlikely that TNC will break up. Impossible. They are one sound and one rock solid party. And in any event, Article 356 is usually imposed only when there has been a breakdown in constitutional procedure. It's only then that Article 356 is imposed or invoked for President's rule to be imposed. Article 356 is imposed, not imposed. So in this case, there has been no breakdown of constitutional procedure. Yes. And the only place which seems to be suffering from constant agitations and bunds is Calcutta. Is not anywhere else. The rest of Bengal seems to be absolutely all right. They seem to be going along. However, one thing which I find very strange, by the way, especially with regard to our mainstream media, I know I'm okay with them. I don't believe that they are like sold out or something like that. I know everybody has their own priorities. प्रदीप जी, आपको याद होगा कि पहले जब हम लोग सहारा में थे तो मुझे याद है we carried out that entire farmers thing. पूरा फार्मर्स का आंदोलन वगैरह शुरू किया, सुसाइड वगैरह, और उसमें we hardly ever used to get any TRPs. Whenever we used to invite Rakhi Sawant at that time, our TRPs used to shoot up. So I think the mainstream media, they have their own priorities. I mean, after all, look at the amount they are spending and so on and so forth. So it all depends upon what sells. जैसे फरुखाबाद में 2 दलित बच्चियों की लाशें मिली परसों और लटकी हुई, और वही प्रोसीजर फॉलो किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको फौरन मतलब उनका अंतिम संस्कार भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरी तरह नहीं आई है। पेरेंट्स कहते हैं कि इनके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हरकत हुई है। इसी प्रकार हाथरस में किया गया, इसी प्रकार उन्नाव वगैरह वगैरह की जो भी वो हैं, तो वहाँ लेकिन किसी ने कोई एजिटेशन नहीं करी है प्रदीप जी। सो आई एम आस्किंग यू, could it be because these were Dalit girls? They were not professionals. They didn't come from an urban background. They were not middle class girls. जिसकी वजह से इनके ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। जैसे बदलापुर को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचनी चाहिए थी। 2 बच्चियों के साथ हुआ है सर, 2 little girls, 4 साल की। लेकिन जो RJ कार मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, उसको लेकर के जो एजुटेशन चल रही है, वो बदलापुर को लेकर के क्यों नहीं चल रही है? Why? What could be the reasons? I mean, this even the opposition has to. Up the both sides of judiciary, where the opposition really wanted to create problem in Maharashtra, they were gunned out ready for that. But suddenly the judiciary came in and said, any band is unconstitutional. You can't do it. You can't go on a band. मतलब बंद जो है, senior leaders, they said we will not go against judiciary. Now we got the time to go to appeal in the higher courts. So he said we will. तो ये बहुत सारी चीज है. Now the whole world, I mean, the country is watching why 2 different yardsticks were Kolkata is concerned and rapes and crimes against women in other places are concerned. मतलब कलकत्ता में डेमोन्स्ट्रेशन भी अलाउड है और पुलिस को सावधानी बरतने के आदेश भी देता है और माशाल्लाह बंद भी अलाउड है और पुलिस को ये भी कहा गया कि इतनी फोर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
and और बंद असंवैधानिक है मुंबई में और महाराष्ट्र में और बाकी सब देश में। Draupadi Murmu, as you said, the president also casting aspirations where Kolkata is concerned, but she's not talking much about where is it. Prime Minister said crimes against women is unforgivable. Unforgivable, the Prime Minister says, and strict action has to be taken as per law. तो Prime प्रदीप जी, Minister has लेकिन राष्ट्रपति महोदया, the honorable president didn't say a word about Manipur, nor she said No, anything but ये Badlapur. I mean, if you see, ये सब continuously जो लोग देख रहे हैं, the mandate is because of this, that we see Prime Minister Modi, we are not giving you absolute majority or simple majority, we are giving you simple less than majority because arrogance has seeped into the system and you are taking everything for granted. जो राहुल गांधी जी ने 4-5 चीज बार-बार हर चीज में मंच पर लगातार बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, right wing activism is in the fore, opposition leaders are being targeted, minorities are living under fear, judiciary is being intimidated. Now 2 yardsticks by judiciary. If it is unconstitutional here in Maharashtra, How can it be constitutional there? it can't be constitutional there. So any bun. तो ये लोग देखना शुरू कर दिया है, and now this is a cause of concern for the BJP. लेकिन Now जहाँ they तक- need to understand लेकिन they जहाँ- can't take everybody for granted all the time. Yeah, but the only thing is, I think Badlapur is not getting the amount of attention it should. And at the moment with us, we have Mr. Rakesh Shetty. I think he's there with us, and we have is Rakesh Shetty Saab with us? Oh, wonderful. Rakesh Shetty Saab, good evening. गुड इवनिंग सर, कैसे आप? Good evening. How are you? And we also have Roslyn Khan with us for the first time. Roslyn Khan, very good evening to you. How are you? Welcome to the show. I don't think she's there. I think her frame is frozen. Can somebody please check it out, please? I think Roslyn's frame is frozen. Please check that out. In the meantime, we'll start with Rakesh Shetty Saab. Rakesh Shetty Saab, the President साहब ने माशाल्लाह बड़ी एक वो चिट्ठी लिखी, जो कुछ लिखा उन्होंने जो with regard to Calcutta etc. लेकिन उन्होंने मतलब जिक्र I don't know why she forgot what was it. मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं करी, फर्रुखाबाद तो खैर उसके बाद हुआ, उसके बारे में मतलब बात करने का तो सवाल ही नहीं है. हो सकता है कि अभी नई स्टेटमेंट आ जाए, हो सकता है, मुझे मालूम नहीं. I think we got Roslyn back with us. Hello Roslyn, how are you? My Hi, name I'm is, fine. Thank you very much for joining us on the show. I am Rajiv Bajaj. With me is Advocate Pradeep Nambiarji. Thank you so much, Roslyn, for joining us. Right, and with you is Rakesh Shetty Saab, very senior person from the Congress Party. Very unfortunately, the gentleman from the BJP, I think he saw Mr. Rakesh Shetty's face and decided to run away. You seem to have that effect. Is that right, Rakesh? So Shetty Saab, President साहब ने कलकत्ता की बात करी, बदलापुर की बात नहीं करी. बदलापुर की बात नहीं करी, मणिपुर की बात नहीं करी, हाथरस की बात नहीं करी, उन्नाव की बात नहीं करी. क्यों? वहां पे क्या दलित लड़कियां थी इसलिए? और मणिपुर में ट्राइबल हैं भाई, ये क्या है? और बदलापुर में वो छोटी छोटी बच्चियां हैं. Nobody cares. Is that it? Rakesh Shetty Saab, you first. I should have started with you, Roslyn. I'm so sorry, but then we lost you for a minute. So Rakesh Shetty Saab, please go ahead, please. राजीव जी, आपको प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार सर, जय हिंद. सबसे जय हिंद. जब से पहले तो देखिए, कलकत्ता में भी जो हादसा हुआ है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही भयानक है, बिल्कुल. और उसका भी हम विरोध करते हैं, निषेध करते हैं. और उस पे ये गलत होगा बोलना, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही मैच्योरिटी से उस मामले को हैंडल करना था, जो इनिशियल टाइम पे नहीं किया उन्होंने जी. और उस हादसा का हम पूरी तरह निषेध करते. और उसी के साथ साथ आप देखिए, बदलापुर में भी 2 बच्चों के साथ जो हुआ जी, अत्याचार हुआ, उसके बाद पुलिस ने 48 आवर्स तक कंप्लेंट नहीं लिया. आप इमेजिन करो कि वो 5-6 साल की बच्ची है, वो पुलिस स्टेशन में हॉस्पिटल में इंतजार कर रही है और आयो 4-4 घंटे बाद आ रहा है. मतलब वो कितना ट्रॉमा में रहेगी बच्ची और उनके पेरेंट्स. और बदलापुर में हमने देखा, महाराष्ट्र सरकार ने भी जो डिले किया पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में, लोगों को स्कूल पे आके मोर्चा लेना पड़ा, तोड़फोड़ करने पड़ी. उसके बाद रेलवे स्टेशन में आके रेल रो को जब्त किया, तब महाराष्ट्र सरकार नींद से उठी. उन्होंने पहले तो वो जो रेल रोको कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, और उसके बाद उनके मिनिस्टर है गिरीश महाजन, वो गए उनसे बात करने. जब बातचीत से कुछ हल नहीं निकला तो उन्होंने पुलिस को वहीं पे लाठीचार्ज करने बोला. मगर वहां तक मीडिया ने लोगों का साथ दिया,
मगर बहुत शर्म की बात है, उसके अगले दिन आप शायद नहीं जानते, 300 लोगों के ऊपर आंदोलन जिन्होंने किया, जी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया महाराष्ट्र सरकार ने। जी जी, मालूम है उसके सर। बाद 60 लोगों को, मतलब 60 पेरेंट्स को जो स्कूल में अपने बच्चों को भेजते, उनको रस्सी से बांध कर अगले दिन कोर्ट लेके गए मजिस्ट्रेट के सामने। जी मतलब इस देश में, इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का, अपनी आवाज उठाने का। अगर आवाज उठा रहे तो आप ये तरीका से उनको हैंडल करेंगे? मतलब ये स्कूल के पेरेंट्स से कोई, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, क्राइम को रोकने के लिए ये लोग जमीन पे उतरे थे, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही थी, सरकार के लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए लोग आंदोलन कर रहे थे, और इनको क्रिमिनल की तरह लेके गए मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। इसका भी निषेध करना चाहिए। दुरुस्त और बात है। पूरे देश में देखिए जो माहौल है, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, कोई भी सरकार हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कड़क कानून होना चाहिए। जब महिला पुलिस स्टेशन में जाती है तो उनका सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, वहां पे लेडी इंस्पेक्टर को सीरियसली इमोशनली उस जो भी विक्टिम है उसका साथ देना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि वो स्कूल का ट्रस्टी का क्या आरएसएस वालों से लिंक है या कोई भाजपा वाले से लिंक है, इसलिए डिले टैक्सेस, ये सब नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या टीएमसी नहीं करना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए। और महिला किसी की माँ हो, बहन हो, कोई भी राज्य सरकार हो, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, हमारी क्यों ना सरकार हो, उसके अगेंस्ट अगर सरकार ने डिले किया है तो सरकार का निषेध होना चाहिए, दुरुस्त बात। और इसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए। Right, absolutely. Now, Rakesh Shetty Saab, I agree with you over there. But my objection is, and Rosalind, I'm coming to you now. My objection is to the mainstream media. What are they doing? Listen, agreed. What happened at the RJ Kar Medical College was absolutely terrible. Absolutely terrible. It shouldn't have happened. But the very next day in Uttarakhand, there was a nurse who was also gang raped and murdered. Nobody's talking about her. In Farrukhabad, two of these Dalit girls were found hanging from a tree just outside their house. And the parents say that they had all sorts of bite marks and nail marks and other things on their bodies. In Badlapur, two little girls brutalized in this manner. और उसके बाद अब आप प्रदीप जी, बड़ी अजीबो गरीब बात है, अब आप आइडेंटिफिकेशन परेड करेंगे, वो बच्ची क्या, मतलब अगर मान लीजिए उस वक्त उस बच्ची ने उस आदमी को पॉइंट आउट नहीं किया, that means that man goes scot free. What is going on here? Rosalind, you've been very active in this. Do tell us, what do you think about this? What do you think is going on in this country? सी जहाँ से मैं देख रही हूँ यहाँ पर हमें बहुत बड़ा लेसन मिला था निर्भया के बाद। जी उसके बावजूद हम आज तक सीरियस नहीं हुए इस चीज को लेकर। आजकल जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि लोग सिर्फ रेप को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। कुछ केसेस मीडिया में डिस्कस होते हैं और कुछ केसेस मीडिया में डिस्कस नहीं किए जाते, जबकि सेम क्राइम सभी विक्टिम्स के साथ होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब वो कलकत्ता में होता है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, वह जब महाराष्ट्र में होता है तो वो मुद्दा छोटा हो जाता है। ये बात मुद्दा जो बनाया जा रहा है, सबसे पहले सीरियसली हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार रोज आती है और सरकार रोज आकर जाएंगी। आज हमारे युवाओं को हम जो ठीक तरह से हम अपने युवाओं को समझा नहीं पा रहे हैं। ये जो देश है हमारा पूरे वर्ल्ड में सभ्यता के लिए पहचाना जाता है, आज हम इस कगार पे आकर खड़े हैं कि औरतें, हमारी जो महिलाएं हैं, वो चाहे छोटी बच्ची हो या चाहे वो एक बुजुर्ग महिला हो, वो आज सेफ नहीं फील करती है। तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना होगा कि हम अपने घर के युवा को क्या सिखाते हैं और क्या समझाते हैं। तो हमें बेसिक चीजों पर से काम करना शुरू करना होगा और सीरियसली सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। सरकार को भी, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, इन लोगों को
बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए हमारे लिए। मुझे लगता है कि मोस्टली ये केसेस उस वक्त डिस्कस किए जाते हैं जब ऐसा कोई हादसा होता है। कई हादसे ऐसे होते हैं जो शायद रजिस्टर भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक महिला की इज्जत एक ऐसी चीज होती है जो वो पब्लिकली आकर बताती नहीं है। ये जो आप और मैं आज डिस्कस कर रहे हैं, ये वो मैटर्स हैं जो मीडिया में आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जो दबा दिए जाते हैं। तो आपको उस चीज पर ध्यान देना होगा कि महिलाओं के सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, कड़े रूल बनाए जाएं और उनको आगे आकर अपने आप पर होने वाली क्राइम के बारे में रजिस्टर करने के लिए जी, दुरुस्त बात है। कुछ स्पेशल सेल्स बनाए जाएं जहां पर वो आकर जी। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में Right, खुलकर बात कर no, सकें। Pradeep ji. Rosalind ji, I just wanted to ask you, Prime Minister Modi ji ने कहा कि crimes against women is unforgivable. The Prime Minister says that strict action should be taken. The Prime Minister said that he is very clear where crimes against women is concerned. Rahul Gandhi ji, leader of the opposition, equally, absolutely equal, same level पे उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट क्या डाउन द लाइन आपको लग रहा है कि और कलकत्ता केस में भी फैमिली को इन्फॉर्म करने में डिले हो गया, फैमिली को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया कि सुसाइड था, दैट हैपेंड एट द हॉस्पिटल लेवल इन द स्टेट, और ममता बनर्जी इज नॉट इन्वॉल्वड इन दैट, नॉट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन्वॉल्वड, एकनाथ शिंदे इज इन्वॉल्वड, बदलापुर इज कंसर्न, बदलापुर में भी कंटिन्यूस डिले इन फाइलिंग द एफआईआर। जैसे राकेश शेट्टी साहब ने कहा कि अचानक आयोग गायब हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे वेटिंग टू गिव द स्टेटमेंट, पेरेंट्स वेटिंग टू गिव द स्टेटमेंट। तो क्या किधर बदलाव आपको क्या लगता है रोसलिन जी? वेयर डू यू सी दैट? बिकॉज द लीडरशिप इज वेरी क्लियर। सी मैसेज तो सभी तरफ से आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब तरफ से मैसेज आता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है उस वक्त जो लोग हैं वो इन चीजों को सीरियसली हैंडल नहीं करते हैं। सी अब मोदी जी तो घर घर आकर नहीं बोलेंगे कि बेटियों को बचाया जाए, राहुल गांधी घर घर नहीं आएंगे। जहां बेसिक लेवल पे, जहां ग्राउंड लेवल पर काम होना है, लोग वहां पर चूक कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पर हमारी जो चूक हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जो बेटियों को बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करती है, लेकिन हमारे ग्राउंड लेवल पे या तो कुछ पॉलिटिकल चीजें हो जाती होंगी या कोई डर या कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से डिले होता है। और जैसे ही इस तरह के केसेस जब डिले होते हैं तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है और विक्टिम जो होती हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। सबसे सीरियस हमें ये चीज को समझना होगा कि ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो इस चीज को सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जी, शेट्टी साहब, अच्छा फॉलो, शेट्टी साहब, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया बदलापुर वाले इंसिडेंट में कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए धरना पर हमको बैठना पड़ रहा है। दैट इज व्हाट राहुल गांधी। नाउ राहुल जी इज वेरी क्लियर, मोदी जी इज वेरी क्लियर दैट क्राइम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। वेयर इज द प्रॉब्लम? ना दोनों जगह यू सी डिले इन फाइलिंग द एफआईआर, police station responsible. Here we cannot say that Mamata Banerjee is responsible or Eknath Shinde ji is responsible. Rakesh Shetty, you said delay is totally unacceptable. तो इस चीज को कैसे हम लोग करें? Because continuous निर्भया से लेके अभया से लेके बदलापुर से लेके everywhere there is delay in filing FIR. How do we solve the problem? Shetty sir. See, you need a very strong administration among the government और गवर्नमेंट का मैसेज, कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए, पुलिस को एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो उनका एटलीस्ट सबसे पहले एफआईआर तो दर्ज करिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 0 एफआईआर। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं, पिछले एक साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज समथिंग लाइक 47,381 केसेस ओनली इन 1 ईयर। प्रदीप जी, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये केसेस वो है जो रजिस्टर हुए। व्हाट अबाउट द केसेस विच वाज डिफाइड, जिसका कभी रजिस्टर हुआ ही नहीं? तो बात क्वेश्चन ये है। और इतना जैसे अभी पैनलिस्ट कह रही थी, वो सही बात बोल रही कि निर्भया का केस के बाद ये जो केसेस है ये बंद ही नहीं हो रहे। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये बदलापुर का केस हुआ उसके अगले दिन सतारा में एक केस हुआ, एक वसई में केस हुआ, मतलब उसके बाद भी लगातार एफआईआर दर्ज हो रहे।
मुंबई महाराष्ट्र में ये केसेस बढ़ ही रहे। और इसमें क्या है, मैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा, इसमें मैं ये कहूंगा कि क्राइम्स अगर होते तो इमीडिएटली पुलिस डिपार्टमेंट को इसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा, किसी की भी सरकार हो, इररिलेवेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये आप देखिए ना, ये फिगर कितना डेंजरस है। मतलब अपना समाज से ही हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, अगर एक साल में महाराष्ट्र के अंदर 47,381 केसेस रजिस्टर होते हैं, मतलब 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर एक्चुअल केसेस रहेंगे। और जहां तक आपने पहला प्रश्न उठाया, आजकल क्या हुआ कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है। मतलब अपोजिशन की सरकार है तो राष्ट्रपति महोदय भी बोल रही है, कोर्ट भी बोल रहा है, कोर्ट सू मोटो ले रहा है, न्यूज चैनल्स डिबेट के ऊपर डिबेट चला रहे। मगर यही हादसा जब मणिपुर में हो रहा था, मणिपुर के मुख्यमंत्री ब्लंटली कहे कि जब 2 लड़कियों का निर्वस्त्र होकर उनको पुलिस गाड़ी से निकालकर रेप करके जला दिया, मणिपुर के सीएम ने खुद बयान बोला, इसकी क्या बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर हुए। मतलब उन्होंने ओपनली बोलने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट या एक शब्द नहीं कहा मणिपुर की उन लड़कियों, वो बेटियों के बारे में। जब देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अच्छा स्कीम है, उसके बात करते, एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी को कुछ कर्टिसी उस मणिपुर की बच्चियों के ऊपर करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। अपने मुख्यमंत्री को डांट लगाना चाहिए था कि अगर 100 एफआईआर हो रहा है फिर भी तुम काम क्यों नहीं कर रहे, आपके पुलिस प्रशासन क्या कर रहे। ये कोई सवाल जवाब उस मुख्यमंत्री से नहीं पूछा गया। हम कलकत्ता का जो इश्यू है उसका भी निषेध करते हैं, महाराष्ट्र में जो उसका भी निषेध करते हैं, जहां कहीं पे भी। सर आप यूपी भूल गए, आप उत्तर प्रदेश भूल गए। मैं बोल रहा हूँ पूरे देश में, पूरे दुनिया में जी। और इस वक्त हमारे साथ हैं सुशील व्यास जी, एकनाथ शिंदे सेना के। व्यास साहब नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद व्यास साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो सुशील व्यास जी, निर्भया कांड के बाद यह तय हुआ था, अगर आपको याद हो, कि 0 एफआईआर होगा। कोई भी महिला जाएगी किसी भी पुलिस स्टेशन में, एकदम फौरन उसका एफआईआर रजिस्टर होगा, उसके ऊपर एकदम एक्शन होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर आपको याद होगा जी। तो आप ये बताइए सुशील व्यास जी, ये बदलापुर में देरी कैसे हो गई, क्या हुआ क्या कि लोग मतलब क्योंकि बहुत छोटी बच्चियां थी इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्या क्या हुआ था व्यास साहब? बजाज जी, जो घटना बदलापुर में हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हैवानियत से भरी हुई है जी, और उसका कोई समर्थन किसी रूप में कोई कर नहीं सकता। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरे साथी राकेश सेठी जी बोल रहे थे कि इस तरह की घटना है, इसको हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, लेकिन हमको देखना होगा कि जितनी जल्दी हो उनको न्याय मिलना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा कि कुछ जिम्मेदारीपूर्ण एक बयान ये विपक्ष का भी सामने आता है। और सही में बजाज जी, ये जो एक मनोविकार इस समाज में जो बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय है। ये घटना बदलापुर ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसको हम लोगों को विचारधाराओं को एक तरफ रखते हुए एक सामाजिक विकार के रूप में देख करके किस तरह से इसका हल किया जाए, हम लोगों को कहीं न कहीं इकट्ठा आकर के एक साथ में इसका कोई हल निकालना होगा कि समाज में इस तरह की जो एक मनोविकार की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको हम किस तरह से सामना करें। अब रही बात बदलापुर की, तो दुर्दैवी है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 12-13 घंटे तक कानून की जो उनकी ड्यूटी थी उसका पालना नहीं की, उसका उल्लंघन किया और जो पीड़ित परिवार है उसको अपना वहाँ पे वेट करना पड़ा और उसी के चलते इतना आप देख रहे हैं कि जनता में आक्रोश आया और जैसे ही राज्य सरकार को इस बात का ज्ञान मिला, उन्होंने तुरंत एसआईटी का गठन हो, आरती सिंह जी आईपीएस ऑफिसर के नेतृत्व में, या वहाँ स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने का मामला हो, या तमाम जो जिस तरह की प्रशासनिक कदम उठा सकते हैं उठाए। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो पुलिस अधिकारियों ने वहाँ अपनी ड्यूटी निभाने के प्रति लापरवाही की है उनको किसी भी तरह से कानून या दूसरी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन सुशील व्यास जी, ये बात तो ठीक है, मैं मानता हूं। अरे भाई, जो भी सरकार है, जो भी मंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री है, वो एक एक पुलिस स्टेशन का तो मुआयना नहीं कर सकता, सीधी बात है, आई एग्री। लेकिन जैसे अभी राकेश शेट्टी साहब बता रहे थे, अरे 300 लोगों के खिलाफ आपने केस कर दिए हैं,
60 बेचारे जो पेरेंट्स हैं उनको बांध करके मैजिस्ट्रेट के सामने आप लेके गए, ये क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? सुशील व्यास साहब जी, शेट्टी साहब आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए जी। शेट्टी साहब बोलिए। मैं सुशील जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, बहुत सारे चैनल में मेरे को इनके साथ डिबेट करने का मौका मिलता है। सुशील जी, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको आपके मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि ये जो 300 पेरेंट्स है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, 60 लोगों को पुलिस ने रस्सी बांधकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लेके गए। आप भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, आपको मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि ये केसेस विड्रॉ होना चाहिए। और ये पेरेंट्स, सुशील जी, मैं मानता हूं कि आप और मेरे भी घर पे अगर ये हादसा होता, हम भी पत्थर लेते और हम भी मारते। तो मुझे लगता है आप भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, एक नेता है, तो ये मैं आपसे इनके शो में आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप ये मुख्यमंत्री के पास उठाइए मुद्दा और इनका एफआईआर वापस करिए। लोगों का कैरियर खराब हो जाएगा, कल उनको कहीं पे विदेश जाना होगा, पासपोर्ट होगा, सब जगह ये केस दिखेगा। और वो जो लोग रास्ता रोको किया, रेल रोको किया, ये आउट ऑफ एंगर किया है, उनको आप क्रिमिनल जैसे नहीं ट्रीट कर सकते। ये मैं इतना कहना चाहता था। सुशील व्यास जी क्या करेंगे आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इसके बारे में? राकेश भाई, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपने जो एक बात कही उससे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं कि आक्रोश में पत्थरबाजी, बिल्कुल ये नहीं हो सकती। आक्रोश उसका प्रदर्शन हो सकता है, हम अपने गुस्से को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जाहिर हिंसक नहीं हो सकता। अब रही बात मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाने एक ही मिनट सुशील जी, एक ही मिनट में आपको टोकूंगा। राजीव जी, प्रदीप जी, आप लोगों ने एक पिक्चर देखा आनंदीगे जी के नाम पे आया हुआ? जी जी जी। वो पिक्चर हमारे एकनाथ शिंदे जी ने प्रोड्यूस किया है। और जब एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है, एक आदमी रेप करता है, तो उस पिक्चर में दिखाया गया कि एकनाथ शिंदे ने बैट से उस आदमी का पैर तोड़ा था। आपने देखा होगा तो पिक्चर जी। वो आनंदी के साथ आप देख सकते ऑन रिकॉर्ड है। वो पिक्चर में था सर, पिक्चर में था। नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अगर पिक्चर का प्रोड्यूसर एकनाथ शिंदे थे और एक्टर एकनाथ शिंदे का रूप में दिखाया गया, और ये सही बात है, अगर लड़की के ऊपर अत्याचार कोई करेगा उसका पैर तोड़ा ही जाना चाहिए। और सुशील जी, आप बोलते हैं पत्थर फेंकना गलत बात है। आपके हमारे मुख्यमंत्री ने अपने पिक्चर जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें उनका जो रोल है उसके इसमें दिखाया गया कि जो आदमी को सुला के मारा जा रहा है, रॉड से पैर तोड़ा जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? फिर व्यास साहब जवाब दीजिए। व्यास साहब, शिंदे साहब ने जाने और क्या क्या किया है उसके बारे में जरा बोलने की, उसके बारे में बोल नहीं पाएंगे जी। बोलिए व्यास साहब। राकेश भाई, अगर पिक्चरों में क्या क्या होता है वो अगर हम लोग सही लाइफ में करने लगे तो ये जितने भी न्याय की प्रणालियां है, कायदे कानून, उसको हम जरा एक किताब साइड में रख दें, आपका ये कहना है, तो फिर न्याय हो जाएगा, है ना? लेकिन व्यास जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? अरे व्यास जी, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी, मैं वही कहने जा रहा था, राकेश जी बीच में बोल गए, मैं उनको सुन रहा था। अभी 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री जी पुडारी के 1 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में 1.5 घंटा बोले, हर इश्यू पे बोले जी। पुडारी जो मराठी न्यूज चैनल है, जी, पुडारी 15 मिनट पहले उनका कार्यक्रम खत्म हुआ। बहुत पुराना अखबार भी है पुडारी जी। उन्होंने इस इश्यू पे भी कहा, उन्होंने कहा कि जब तक आंदोलनकारियों पर कोई एक्शन नहीं ली गई, जब तक वो दिन भर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में कि वहां हर 2-3 घंटे में वो जो कुछ आंदोलनकारी हैं बदल जा रहे हैं, और अचानक वहां पे वो बैनर आ जाते हैं कि लाडली बहना हटाओ और बहनों को बचाओ। मैं कह रहा हूं वहां लाडली बहनों के साथ एक अमानवीय कृत्य तो हुआ, लेकिन लाडली बहना स्कीम को वहां पे विरोध करना और ये बैनर वहां पे दिखाना, ये, और वो जो चेहरे थे वो बता रहे थे कि वो बाहर से गाड़ियां भर भर के आ रही थी, लोकल बदलापुर के, वहां से पीड़ित परिवार के लोग सुबह से वहां पे लगे हुए थे। गिरीश महाजन जी वरिष्ठ मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, वहां खुद बदलापुर के रेलवे स्टेशन पे कर रहे कि भाई जिस तरह से इन 2 परिवारों के साथ पीड़ा हुई है, आज कई लाखों परिवार अपनी नौकरी पेशे के लिए लोकल ट्रेन पकड़ के मुंबई की तरफ गए हैं।
आप 8 घंटे से ट्रेन बंद कर रखे, उनको भी वापस आने, उनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, तो आप रेलवे ट्रैक खाली कीजिए। वो जब ये शांति बनाए रखने की अपील वो कर रहे थे, अचानक राजीव जी मेरे को बोलना है। बोलिए बोलिए सर, मैं आप बोल रहे ये थे, पहले व्यास साहब को खत्म करने दीजिए, बोलिए। मैं मेरा भी कूट टूट जाएगा। मैं आपको पूरा कोरिलेशन बताता हूँ। सीसीटीवी फुटेज उठा के देख लीजिएगा। 1 मिनट, ये जो सुशील जी बोल रहे तो सीनियर व्यक्ति है, अरे आपकी ओरिजिनल शिवसेना पार्टी तो पूरा मुंबई बंद कराती थी। आप तो बजाज जी, आप मुंबई में नहीं रहते क्या? प्रदीप जी वो बात कर रहे हैं ट्रेन बंद की, आप लोग भूल गए ये ओरिजिनल शिवसेना वाले लोग हैं। ये लोग तो पूरा मुंबई बंद कर आते थे, बसें भी जलती थी नहीं आती थी सर, बेस्ट की बसें भी जला करती थी। अरे बस जलाते थे। आप लोग तो ओरिजिनल शिवसेना वाले, आप तो मुंबई। अरे सुशील जी, आपका पार्टी का ये पॉलिसी था मुंबई बंद, मतलब कंप्लीट बंद। तब रेल हो ट्रेन हो सबका तेल निकालते थे। सर मैं सबको बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगी। जी बोलिए। मैं आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब करना बोलिए बोलिए रोजलिन जी, यू मैं नॉट ये डिस्टर्बिंग, चाहती हूँ बोलिए। कि आप सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज आप ये देखिएगा कि अचानक से रेप केस के बारे में बात करते करते अचानक से पॉलिटिकल मुद्दा जब बनता है, जैसे कि हमारे 2 और भी बैठे हुए हैं इस वक्त लाइव पर, आप देखिए कि अचानक से एक रेप मुद्दा है, बहुत सीरियस मुद्दा है, उसमें जब पॉलिटिक्स आती है तब ये रेप केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। यही मैं आपसे बताना चाहती रोजलिन जी, आई थिंक आई डिसएग्री विद यू। मैं जरा आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। चुप होते हैं और कब इस चीज को मानते हैं कि सी शिवसेना ने क्या किया, किसने क्या किया। पता चल रहा था कि ये जो आंदोलन चल रहा था उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग आ गए होंगे, ये मुझे भी समझ आता है, आप भी जानते हैं। लेकिन रोजलिन जी, जो बात अभी हो रही है वो इस मुद्दे पे हो रही है कि जो 60 माँ बाप हैं, 60 पेरेंट्स जो हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो विड्रॉ होना चाहिए। लेकिन ये तो गलत हुआ है, लेकिन उसी बीच में कुछ लोग जो ये आकर हंगामा करते हैं जी, नॉर्मली जब साइलेंटली ये जब आंदोलन हो रहा है, उस बीच में लोग उसका पॉलिटिकली फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जी दुरुस्त। साइलेंटली एक आंदोलन हो रहा है, आप उसे होने दीजिए। जहां से मैं देख रही हूँ, मुझे ये फील हुआ कि कुछ लोगों ने इसको मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने के लिए वहां पर हंगामे किए। जब कुछ चीजें आराम से हो रही थी, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम की वजह से वहां बैठे थे, उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया। वो हर जगह ही होता है। पर रोजलिन जी, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी का ट्वीट बनता है तो ये सीरियस मुद्दे पे काम नहीं हो पाता, हर बार यही होता है। बट रोजलिन जी, अगर राहुल गांधी जी ट्वीट नहीं करता कि केस लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा, इट प्रेशर्स द गवर्नमेंट मशीनरी टू एक्ट, डोंट यू थिंक? राहुल गांधी जी बोलना, दिस इज व्हाट आई मीन। Don't tweet, don't post and don't go for debates also. Work. सबसे पहले हम काम नहीं करते, तब तो काम से ज्यादा हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, कोई ट्वीट कर देता है, कोई पोस्ट कर देता है, मगर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता। But the same thing applies even in Calcutta. डिफेंड कर रहे हैं दोनों तरफ से, एक जगह से नहीं है। दोनों लोग अपने आप को डिफेंड करने पे लगे हुए। जैसे महाराष्ट्र में जब ये मुद्दा आता है तो दोनों पार्टी सोचती है कि कहीं हम कटघरे में आकर खड़े ना हो जाए कि हमारे स्टेट में ऐसा हुआ। जब वहां उनकी स्टेट में होता है तो अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे वो कटघरे में आकर खड़े हो गए कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे स्टेट में ऐसा हो गया। बेसिकली अपने स्टेट्स देखते हैं, अपनी जो पॉलिटिकल जो इनकी जगह है वो देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ। ये नहीं देखते कि हमारी माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा हुआ। जिस दिन ये इस चीज को इमोशनली लेंगे और सीरियसली लेंगे, उस दिन ये मुद्दे होंगे ही नहीं। But if political people don't react, रोजलिन जी, काम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एक्शन में, हरकत में कैसे आएंगे? राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, सुप्रिया सुले जी ने आलोचना किया, नाना पटोले पहुंचे, मगर काम जो लोग नीचे कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसलिए तो लोग आए थे, नहीं कर रहे थे।
आई थिंक सुशील व्यास जी विल डिफर विद अस, बट सुशील व्यास जी डिले तो हुआ था, इसलिए राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, सुप्रिया सुले जी का स्टेटमेंट आया, नाना पटोले जी फील्ड पे पहुंचे, जैसे राकेश शेट्टी साहब कह रहे कर सकते हैं, तो उसी तरह लोकल पुलिस स्टेशन इनके लिए 2 मिनट का काम है। आप समझ रहे हैं, मोदी जी बहुत पावरफुल है। आज की डेट में अगर मोदी जी ये बोलते हैं कि कल से हम लॉकडाउन करते हैं, तो लॉकडाउन हो जाता है। आज मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि अगर वो कल ये आकर बोल देते हैं कि हमें इस मुद्दे पर काम करना है, तो मुझे नहीं लगता तो कि इंडिया में कोई भी इंसान इस चीज के अगेंस्ट जाएगा। बोला तो है, लेकिन आई टेल यू व्हाट, सुशील व्यास साहब जी, राइट, शेट्टी साहब, आई वांट टू नो शेट्टी साहब, हाउ डू यू कंट्रोल अ लीडरलेस क्राउड? बदलापुर में जो लोग ट्रेन ब्लॉक कर रहे थे, इट वाज लीडरलेस, उनका कोई लीडर नहीं था। हाँ, तो रोजलिन जी किससे बात करे पुलिस? बिकॉज पुलिस बार बार पूरे दिन बात कर रहे थे, द क्राउड वाज ह्यूज, देयर वाज नो लीडर इन द क्राउड, इट वेंट ऑन, देयर वाज नो वन पॉइंट लीडर जिससे बात करके क्राउड को डिस्पर्स करे। अल्टीमेटली पुलिस हैड टू डू लाठी चार्ज। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ने ये लाठीचार्ज क्यों किया? क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये केस तो रजिस्टर नहीं हो रहा है, बाकी के लोग जो उस वक्त वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, जो अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे। अगर आज हमने निर्भया केस के बाद से काम किया होता, तो आज 10-12 साल हो चुके हैं इस चीज को, तो ये केसेस बढ़ने के बजाय कम होते। आज भी जो हम आज ये डिबेट कर रहे हैं, अगर इसको हम सीरियस लेते हैं और इस पर ग्राउंड लेवल पर काम शुरू होगा, तो ये मुद्दे कम होंगे, ऐसे केसेस कम होते जाएंगे। बट द फैक्ट इज मैम, द सेम थिंग हैपेंड, रोजलिन जी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज हुई कलकत्ता में भी। कलकत्ता में भी क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बाद जाकर के री इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि पुलिस ने तो पहले ये कह दिया था कि भाई ये सुसाइड का मामला है। और बाय द वे वही चीज हुई है परसों फरुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में। हाँ। 2 दलित लड़कियों को लेकर के, उनकी मौत को लेकर के उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं उनके शरीर पर जख्म थे, अलग अलग चीजों की चीज थी। पुलिस ने कह दिया कि भाई साहब ये भी क्या है, आत्महत्या है। Now the point is, unless and until there is an agitation, people don't work. But you are absolutely right. I agree with you totally. निर्भया केस के बाद यह तय हुआ था, कोई भी महिला अगर पुलिस स्टेशन में जाती है और वो अगर कहती है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है या मेरे साथ ये है, यू टेक इट एज द ट्रूथ एंड यू राइट डाउन द एफआईआर, और एफआईआर लेने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया। आपको लगता है रोजलिन जी क्या अब वो शुरू होगा? बताएं। मुझे लग रहा है ना कि आज भी हमारी महिलाओं के लिए उतना काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। आज आप हर डिपार्टमेंट में देखिए, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, आप देखेंगे वहां पर 50% वुमेन होनी चाहिए। 50% तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट 30% वुमेन अगर होंगी तो शायद उनके साथ वो अपने लिए काम करेंगी। आज आप औरतों को अपने घर से ही नहीं निकलने देते हो, तो वो कहां से आगे आएंगी? तो आज जो हुआ है हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। इसे सीख कर हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। हमें अपने युवाओं को एक अच्छी शिक्षा देनी होगी जहां वो औरतों की रिस्पेक्ट कर सकें। यहाँ तो रिस्पेक्ट की बात तो छोड़िए, वो उन्हें जान से मार दिया जाता है और उनका केस तक रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। आज वर्ल्ड लेवल पर हम क्या सीख दे रहे हैं दुनिया को? हम क्या बता रहे हैं कि सभ्यता वाला देश आज उस कगार पे आकर खड़ा हो गया है जहां पर एक औरत सुरक्षित नहीं है। जी, वुमेन एम्पावरमेंट, रोजलिन जी, यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आपने कहा एटलीस्ट पुलिस फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, वेरियस, बिकॉज दिस इज नॉट प्रिवेंटेड टू सम एरिया। कई आर्मी में होता है, कई अलग अलग जगह पर होता है। Now women empowerment is one sure and possible right way approach कि woman is empowered and things happen and people, the women have confidence. You're saying women empowerment is absolutely essential. Rosalyn जी। नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और इक्वली आपको हमारे युवाओं को हमारे घर से हमें शिक्षा देनी होगी। आज जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो पॉर्न साइट्स बड़े इजीली अवेलेबल हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा युवा वन सेकंड सुशील व्यास जी, जो अभी रोजलिन जी ने बात बताई कि आपके हर एक के पास टेलीफोन है। सर व्यास साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
आवाज आ रही है, लेकिन कुछ आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है। जी जी जी, अभी आ रही है आवाज, आप सुन आवाज पा आ रहे रही हैं? है या मैं सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ मैं जी। आपको देख पा रहा हूं, आपने फर्स्ट क्लास लाल कमीज पहनी हुई है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहे हैं, फर्स्ट क्लास बिल्कुल जी। तो सुशील व्यास जी, जो रोजलिन जी ने अभी बात करी, रोजलिन खान जी इस वक्त जो हमारे साथ हैं, कि बहुत पोर्नोग्राफिक साइट्स, सेक्स वाली साइट्स जो हैं वो बहुत अवेलेबल हैं अभी फोन पे, हर जगह पे, हर एक के पास। उसकी वजह से भी ये बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, दुर्व्यवहार की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। व्यास साहब, इस विषय के बारे में कुछ सोचा है क्या? कुछ करना चाहिए लोगों को? व्यास साहब। बजाज जी, मैंने जब अपने वाक्य की शुरुआत की, शायद मेरी रोजलिन बहन ने उस बात को सुना नहीं। मैंने कहा ये मनोविकार समाज में पनप रहा है जी, और जिसका मुकाबला हम सब लोगों को विचारधारा की लड़ाई न लड़ते हुए एक साथ एक सामाजिक संगठन के रूप में लड़ना पड़ेगा। जी, दुरुस्त। और ये जो आप जिन बातों की जिक्र आप कर रहे हैं, जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, जो चीजें समाज के डोमेन में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में है और उससे समाज विकृत रूप धारण कर रहा है। ये कहीं न कहीं इस पे रुकाव आना चाहिए। कानून भी है, कानून को थोड़ा सा कड़ाई से इस पे पालन करना होगा और ये हिंदुस्तान के हर कोने में होना चाहिए, वो चाहे वो केंद्र सरकार हो या हर राज्य सरकार हो। इस तरह की जो आप जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर उस तरह का मटेरियल पब्लिक डोमेन में सोशल में अवेलेबल है और विशेषकर युवा वर्ग और उसको देख करके मनोविकृति, जिस तरह की ये जो बदलापुर वगैरह की घटनाएं हम देख रहे हैं, उनको अगर रोकना है तो कानून को हमको। लेकिन सुशील व्यास जी, एक और चीज आपके सामने रखता हूं। ये तो चलो बात हो गई सोशल मीडिया की, और देखिए साहब, वो पहले से ही अवेलेबल होता था। आज की तारीख में क्या है कि क्योंकि सोशल मीडिया इसलिए बहुत जल्दी अवेलेबल है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी अवेलेबल इन प्रिंट फॉर्म, लोग पढ़ा करते थे उनको, आपको याद है मस्तराम वगैरह वगैरह सब चीजें आया करती थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मैं तो बहुत पुराना पत्रकार हूं, मुझे तो याद है, एक एक चीज याद है सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सुशील व्यास जी, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी थी, डायरेक्शन थी कि हर पुलिस स्टेशन में किस महिला, कोई भी महिला अगर आती है तो उसके साथ क्या क्या व्यवहार होना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी एक ऑर्डर आया था कि हर पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के लिए कोई महिला पुलिस ऑफिसर तैनात होनी चाहिए 24 घंटे, यह भी कहा गया था। आज की तारीख में सर, किस पुलिस स्टेशन में महिला ऑफिसर तैनात रहती है 24 घंटे सर? आप बताइए मुझको व्यास साहब। बजाज जी, जो कानून की प्रक्रिया है और जो प्रशासनिक तौर पे निर्णय लिए गए हैं उनको बिल्कुल लागू किया गया है, लेकिन सवाल है कि अब उस पे अपनी ड्यूटी के प्रति कितनी जवाबदेही कोई संबंधित अधिकारी जो महिला है वो निभाती। जैसे मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये जो महिला जो लापरवाही अपनी ड्यूटी के प्रति रही, मैं यहाँ की चीफ सीनियर इंस्पेक्टर, वो महिला थी। अभी कहने में हमको बड़ा दर्द होता है, लेकिन वो नहीं निभा पाई अपनी। क्यों नहीं निभा पाई? अब एसआईटी की गठित हो गई है, जांच होगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उनके खिलाफ, वो सारी चीजें बाहर आएगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, शासन ने प्रशासनिक तरीके तौर पर हर चीज को लागू करने की कोशिश की है। अब सवाल इम्प्लीमेंट तो वो संबंधित अधिकारी जिसकी नियुक्ति वहां हुई है उसके माध्यम से होगा। अब वो अगर कहीं फेल कर जाता है अपनी ड्यूटी को निभाने में, तो उसकी अब जांच होगी और अब कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो सकती है रिपोर्ट के आधार पे उनके खिलाफ। अब अगर स्कूल पर आते हैं सुशील व्यास जी, ये तो रही जहां तक के पुलिस स्टेशन की बात है, अगर स्कूल के ऊपर आते हैं, स्कूल में ये बहुत पुराना कानून है सर, अभी से नहीं है। ये कानून जो है 1932 से, 1932 से सर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कानून है ये 1932 में, के लेडीज टॉयलेट के लिए हमेशा एक बाई रहेगी, बच्चियों के टॉयलेट के लिए हमेशा एक मेड सर्वेंट रहेगी वहां पे। सर 1932 का कानून है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, अभी भी लागू है स्कूल्स के ऊपर। तो बाकी स्कूल्स के अंदर क्या ये लागू है, नहीं है? क्या इसको लोग निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं? इसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हो रही है व्यास साहब? जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हमारे जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं माननीय दीपक केसरकर जी खुद वहां पे ग्राउंड जीरो स्कूल में पहुंचे और उन्होंने तुरंत वहां पे प्रशासक बैठाने का काम किया। अब रही बात महाराष्ट्र के अन्य स्कूलों में, इस तरह के बिल्कुल एक गाइडलाइन बना करके उनको कहा गया कि आप रीचेक कीजिए। सर गाइडलाइन तो है,
नहीं Guideline वही है सर, बहुत अच्छी गाइडलाइन guideline है। को आप रीचेक कीजिए कि वहां पे जी। इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा जी, है। तुरंत जैसे बात। मैं खुद 2-3 स्कूलों का प्रेसिडेंट हूँ, कॉलेज का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। क्या मैंने बात अपने है। स्कूलों में जाके देखा, वहाँ के प्रिंसिपलों से पता लगाया, वहाँ के सेक्रेटरी जो है उनसे पता लगाया कि भाई अपने सीसीटीवी चल रहे हैं कि नहीं, आपने लेडीज टॉयलेट का बरोबर वहाँ पे कंट्रोल है कि नहीं, कहीं ये फ्लो जो बदलापुर में सामने आया वो अपने यहाँ है कि नहीं। ये सारी चीजें अब जागरूकता आई है, इसमें आप निश्चिंत रहिए कि जो बहुत कमियां बदलापुर में सामने आई है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार, प्रशासन और स्थानीय स्तर पर जो हमारे अधिकारीगण हैं उन साथ के मिलकर और स्कूल के मैनेजमेंट, ये सारे मिलकर के आप जागृत हो गए हैं, इन कमियों को शायद दूर कर बट सुशील व्यास जी, एकनाथ शिंदे जी ने कहा इसको पॉलिटिकल मत बनाओ, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल कर रहे हैं। मगर मेरा आपसे पूछना यह है कि अगर राहुल गांधी जी ट्वीट नहीं करते, अगर उद्धव ठाकरे जी आंदोलन पर नहीं उतर आते, मीन्स उद्धव जी के सेना के लोग वहां पर नहीं आते, नाना पाटोले जी के स्टेटमेंट नहीं होते, अलग अलग सुप्रिया सुले जी कुछ बोलते नहीं, तो क्या प्रशासन हरकत में आते? ये क्या ये सब इतने, बिकॉज you found Badlapur, there was no solution, police could not find solution, no leadership could find solutions। तो ऐसे हालात में if राहुल गांधी ने ट्वीट किया हो, सुप्रिया सुले ने कमेंट किया हो, या नाना पाटोले, तो उसमें गलत क्या है, पॉलिटिकल क्या है? why you are accusing politics there? नामबिहार जी, ये ट्वीट मात्र ही पॉलिटिक्स हमारा कहने का मतलब नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस आधार पर और जिस बैकग्राउंड को चलते पॉलिटिसाइज की बात कही, वो मैं कह रहा था, तो थोड़ा सा मुझे सेठी जी ने उस समय रोक दिया था कि जो मैं रोजलिन बहन भी वही बात कह रही थी, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। वहां पे हमारे वरिष्ठ मंत्री गिरीश महाजन गए, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखिए आपकी तरह लाखों भाई बहन अपने अपने नौकरी पैसे धंधे के लिए मुंबई शहर की तरफ गए हैं, शाम हो गई, उनको वापस आना है, उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनको अपने घरों की तरफ लौटने के लिए रेलवे ट्रैक खाली कीजिए। जब वो ये बात कह रहे थे, आप मानिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 पौने 6 बजे तक आंदोलन, आप सीसीटीवी फुटेज उठा के देख लीजिए, पूरा शांतिपूर्ण तरीके। अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस भी तो तब क्या करें, माइल लाठीचार्ज नहीं करें तो हमारे पे आरोप लगता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं आता। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेम चीज कैलकाटा में भी हुई है, वहां पर मैं रोजलिन बहन थोड़ा सा किसी के बीच में बोलता नहीं है, और मुझे कोई बीच में टोकता है तो मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। जी बोलिए व्यास जी, आप अपनी बात पूरी करें। और मुख्यमंत्री जी ने वही कहा कि हर 2-3 घंटे में चेहरे बदल रहे थे और गाड़ियां बाहर से भर भर के आ रही थी। वो जो लोकल बदलापुर के लोग थे, उनको मैं जानता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र वो रहा है, उनके पुत्र वहां से तीसरी बार सांसद चुन के आए, तो मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है वहां के लोकल लोग हैं उनको जानते हैं। ऐसा नहीं, हम भी हमारे साउथ मुंबई में काम करते हैं, हर गली गली के कार्यकर्ता चाहे वो किसी दल के हो, हम जानते हैं चेहरों से उनको, तो समझ में आता है कौन बाहर का है, कौन यहाँ का है, कौन स्थानीय है। जिनके साथ पीड़ा हुई है, जिनके साथ ये घटना हुई है, निश्चित हम उनके साथ है, उन परिवार के साथ खड़े, उस बहन के साथ खड़े, उन बहन के परिवार के साथ, वो हमारा परिवार है। हम उनको जितना भी न्याय भारतीय न्याय पद्धति के अनुसार हो सकता है, जितना शीघ्र हो सकता है हम दिलवाएंगे। लेकिन जो न्याय तोड़कर कानून अपने हाथ में लेकर पत्थरबाजी करके शासन को अरे व्यास साहब, आपको लगता है नहीं होगा क्या? कोई ऐसा मौका छोड़ेगा क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा मौका छोड़ेगी? अगर आप विपक्ष में होते तो आप भी यही कर रहे होते। व्यास जी छोड़िए, क्या तो बजाज जी केस क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो केस झेले ही होंगे हमने भी। अगर भूतकाल में हमने इस तरह की कोई आंदोलन किए तो हमने केस झेले ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास 0 FIR है जी। No, but सुशील जी, the very fact that is argument है against you कि ये लीडरलेस एक मॉब था, एक लीडरलेस लोग वहां पर थे, बिकॉज पुलिस बार बार नेगोशिएशन में बात कर रहा था कि हटिए। देयर वाज नो सिंगल लीडर, देयर वाज नो इट वाज लीडरलेस मॉब। तो एक से बात करे दूसरा राजी नहीं हो रहा था। तो एक क्लियर कट ऑपोजिशन का कहना है कि इट वाज नॉट अ मोटिवेटेड मॉब आउट देयर, इट वाज ट्रूली जेन्युइन मॉब जो वहां पर आके, तो कोई लीडर, अगर कोई डिसिप्लिन मॉब था तो एक लीडर से बात करते दे वुड मूड अवे, पुलिस वुड बीन डिस्टर्ब। तो क्या आपको लग रहा है इसमें कोई डाउट है आपको कि दे वर ऑल जेन्युइन बिकॉज इट वाज द लीडरलेस? किससे बात करे पुलिस? मेरी विनम्र निवेदन आपसे है नामबिहार जी, आप तो खुद कानून के ज्ञाता हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर है लाइक मी, तो यू नो कि कब घटनाएं कब घटित होती हैं। और जैसे बजाज जी कह रहे थे कि 60 लोगों को और 300 लोगों को FIR हुआ, तो वहां तो हजारों लोग थे, उन पे क्यों नहीं हुआ?
जो सीसीटीवी फुटेज में जिनके चेहरे आए और जिनको वो कृत्य, जिसको हम कानून का उल्लंघन कहते हैं या कानून को हाथ में लेने की घटना कहते हैं, वो हुआ तभी तो उनपे कोई केस हुआ। और फिर मान लीजिए उनको ऐसा लगता है कि हमने ये नहीं किया, फिर भी हमारे पे वी आर इनोसेंट स्टिल, वी हैव बीन चार्ज, तो ठीक है, कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन फाइल हुई। लेकिन जो 60 पेरेंट्स के ऊपर हुआ है सर, जो 60 पेरेंट्स के ऊपर हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आप उनके लिए आप दरखास्त करेंगे सीएम साहब से, हम भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर इस तरह की हम भी बात करेंगे, भाई पेरेंट्स को तो छोड़िए ना, माता पिता को तो छोड़िए, जो स्कूल के पेरेंट्स हैं अगर किसी के साथ इनजस्टिस की कोई घटना अगर है, निश्चित रूप से आपने हमारी नॉलेज में उस चीज को लाया है। हम हमारे सर्वोच्च नेता दैट इज माय ओपिनियन, दैट्स बीइंग वेरी वेरी अनफेयर। उन जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सर, मतलब कम ऑन। रोजलिन जी आप कुछ सॉरी सर, रोजलिन जी आप कुछ बोल रही थी, यू वर अबाउट टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड मैम। मैं ये कह रही थी कि जब सेम इसी तरह की घटना कलकत्ता में हुई तो आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से भी बहुत कुछ हुआ था। अभी भी हो रहा है, जहां तक हर रोज हो रहा है मैम, हर रोज हो रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ कि दोनों तरफ अगर आप देखोगे, आप सीरियसली अगर दोनों चीजों को उस तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है और जो अपोजिशन में बैठे हुए, दोनों अपने आप को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इनमें से कोई भी इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहा है। इन लोगों को चाहिए कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन्हें छोड़ा जाए, प्लस जो इस वक्त काम किया जाए वो है औरतों की सुरक्षा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है और उस पर कड़े से कड़े कानून बनाए जाए। बट रोजलिन जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुंबई में रहती हैं, चलना चाहिए फास्ट ट्रैक। रोजलिन जी आप मुंबई में रहती हैं, यू आर अ मॉडल एंड यू आर ऑल्सो एन एक्टिविस्ट। आपने बहुत अच्छा काम किया है, जबरदस्त काम किया आपने, आपका पूरा काम जो है स्पेशली कैंसर अवेयरनेस में आपका काम जो है बहुत प्रशंसनीय है, मानता हूं। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मुंबई में? मेरी समझ में मुंबई अभी भी पूरे भारत में तकरीबन सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस, सेफेस्ट प्लेसेस फॉर विमेन। अभी तक रात के 2-2, मैं जहां पर रहता हूं, जूहू में जहां पर रहता हूं, मैं आपको बता दूं, वो जो जूहू तारा रोड है, रात के 3 बजे तक वहां पे ऐसी भीड़ रहती है, ऐसे लगता है कि दोपहर के 2 बज रहे हो, वेरी फ्रैंकली। तो मुंबई सोती नहीं है कभी भी। तो आप ये बताएं कि आप महिला होने के नाते क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, बताएं। मैं पूरे महाराष्ट्र का नहीं बोल सकती, लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आप रात के 4 बजे भी किसी ऑटो रिक्शा में बैठकर आप कहीं भी घूम सकते हो। तो जो आज मॉडल हमने जो तैयार किया है, जो एग्जाम्पल आज मुंबई पुलिस ने सेट की है, अगर ऐसी एग्जाम्पल सेट करने के लिए हर शहर खड़ा हो जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या बात है सर, व्यास जी आपकी तारीफ हो रही है, एक सेकंड, व्यास जी की तारीफ हो रही है सर। वुमेन एम्पावरमेंट, रोजलिन जी, वुमेन एम्पावरमेंट, यू टॉक्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। जो व्यास जी के पार्टी एकनाथ शिंदे लाड़की बहन स्कीम लेके आए, 1500 रुपया, मगर वहां सबको क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म, क्या एम्पावरमेंट, गिविंग मनी टू वुमेन, गुलाबी रिक्शा स्कीम जो एकनाथ शिंदे जी, अलग अलग एम्पावरमेंट स्कीम जो है, लखपति दीदी जो सेंटर से स्कीम आया, एम्पावरमेंट का ये जरिया है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं दिस विल एम्पावर वुमेन? हाउ डू यू सी दैट? You are asking me? I'm asking Rosalyn, then I'll come back to you. Rosalyn जी, अगर औरतों की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर कोई भी स्कीम बनती तो प्लीज मैं आप सभी नेताओं से, सभी लोगों से कहूंगी कि उस चीज को आप एक पॉलिटिकल वे में मत देखिए, क्योंकि हमारी जो देश की युवतियां हैं, जो वुमेन है, उनके एम्पावरमेंट के ऊपर काम हुआ ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो आप घर में देखेंगे कि हमारे घर में काम वाली बाई आती, कितने कम पैसे उससे वो कहीं से दिक्कत से आती होगी, कैसे आती है। आप लोगों को अगर ऐसी औरतों के अकाउंट में कुछ पैसा जाता है तो आप उस चीज को कैसे पॉलिटिकल मुद्दा बना सकते हो? ये जो चीजें हमारी छोटे छोटे शहरों में सरकार अगर कर रही है तो आपको उसको और बढ़ावा देना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि औरतों के लिए और स्कीमें बनाई जाए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई जाए, उनको मनी से, अगर आप पैसे से आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, दिस इज गुड। ना कि आप ये बोलो कि पैसे देकर उससे वोट लिया जा रहा है। ये सब
ओछी चीजें लगती हैं आज मुझे। व्यास साहब आप बताएं। व्यास जी मगर आप पे आलोचना है, सुप्रिया सुले जी, नाना पटोले जी, ये 1500 लेकर आप खरीदना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, you're luring voters, enticing voters to vote for you. Now how do you, सुप्रिया सुले ने खुलेआम बोले कि 200 करोड़ आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सोसाइटी के लिए सिर्फ 1500। तो ये अलग अलग आलोचना आप पे हो रहा है व्यास जी। नामबिहार जी, विपक्ष अगर आलोचना नहीं करेगा तो बधाई तो नहीं देगा हमको। उनकी हताशा और निराशा है, क्योंकि ये गेम चेंजिंग स्कीम साबित हो रही थी। ये बदलापुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पहले आपने देखा पूरे महाराष्ट्र में ओवरनाइट जैसे ही 14 अगस्त को ट्रांसफर हुए ये लाडली बहना योजना का अनुदान हमारी बहनों के अकाउंट में, आपने देखा जिस गति के साथ बहनों का लाड प्यार, उत्साह, आत्मविश्वास इस वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रति प्रदर्शित हुआ, उसको देख के अचंभित रह गए। अब विपक्ष के पास हताशा और निराशा में ट्वीट और इस तरह का विरोध करने के अलावा क्या बचा? और अगर ऐसा था तो संजय राउत जी ने आवेश में कहा हम तो 3000 देंगे। अरे भाई, तो आप जब 3000 दोगे तो वो तो अच्छा है, हम 1500 दे रहे हैं वो गलत है। ये कौन सी बात है? ये कौन सा तर्क है? हम सवाल अब हमने किसी को मदद करने के लिए नहीं दिया, हम हमारी बहनों को एक आत्मबल बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, आर्थिक रूप से उनको एक थोड़ी सी ताकत मिले, उनका किस तरह से वो एक इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी निभाएं, उसको धीरे धीरे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1500 पर माह कोई लिमिट नहीं है, आगे हो सकता है ये बढ़े। लेकिन सर 1500 भी बहुत होता है। पर व्यास साहब ये एक मिनट, रोजलिन जी एक सेकंड। व्यास साहब, जैसा अभी भी रोजलिन जी ने एक उदाहरण दिया, जो काम वाली बाई आती है घर में या बाकी सब काम के लिए आती है, उसके लिए 1500 भी बहुत ज्यादा होते हैं सर, बहुत ज्यादा होते हैं। ह्यूज अमाउंट। लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर 1500 रुपए और आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वो जो भी अर्न कर रही है, उसके अलावा 1500 रुपए उसके बैंक में आ रहे हैं, सर बहुत बड़ी चीज है। वेरी फ्रैंकली आई होप यू आर एबल टू कीप इट अप, दैट इज माई ओनली कंटेंशन। मेरा कंटेंशन सिर्फ ये है, आई होप दिस विल नॉट बी ओनली टिल द इलेक्शंस, कि सिर्फ इलेक्शन तक नहीं होगा और इलेक्शन के बाद बाय, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, और क्या होता है कि अगर हमने 1500 दिए तो ठीक है, अगर सामने वाले ने 3000 दिए तो वो गलत है। ये मत कीजिए ना, आप स्कीम लेकर आते हैं, मगर अगर मैंने वो स्कीम लेकर आया तो वो स्कीम ठीक है, अगर अपोजिशन ने स्कीम लाई तो वो स्कीम गलत है। ये मत कीजिए ना। आप ये सिंपल, आप ये देखिए एंड रिजल्ट आप क्या दे रहे हैं। आपकी देश की महिला सुरक्षित है या नहीं, आपकी देश की महिला को फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं, आप एंड रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि मैंने 1500 दी तो मैं 3000 दे दूंगा, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। व्यास साहब एक तो आपको मुबारकबाद, रोजलिन जी ने भी ये बात मानी कि मुंबई शहर जो है पूरे देश में महिलाओं के लिए तकरीबन सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दूसरा, ये 1500 रुपए की जो स्कीम है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्कीम है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे भी चलेगी। अच्छा व्यास साहब ये बताइए, ये सिर्फ चुनाव तक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, एक बार वोट मिल गए उसके बाद? सर बजाज जी, कोई भी जो योजना लागू होती है जन कल्याण की, वो विधानसभा के पटल पर बजट के माध्यम से बजटरी एलोकेशन करके जब घोषणा हुई है, तो वो विधानसभा को मद्देनजर रख के नहीं हुई, वो हमारी प्रदेश की महिलाओं बहनों को एक आत्मबल बढ़ाने के लिए हुई है। और निश्चित रूप से हमारे आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत मिलेगा, और आने वाले चुनाव के बाद भी यही सरकार कंटिन्यू रहने वाली है, हमारा आत्मविश्वास है, अहंकार नहीं है। हमारा जनता के प्रति किए गए कार्यों के आधार पर हमको लगता है। पर सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपको बीच में, सॉरी डिस्टर्ब करके, ये जो स्कीम आपने शुरू की है ये सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है मैम, इनकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ स्टेट में है, स्टेट के बाहर नहीं है। मेरे नेता एकनाथ राव जी शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के बाहर उनका कुछ प्रशासनिक तौर पे नहीं चलता, वो सुझाव दे सकते हैं। अच्छा तो ये बताइए व्यास साहब, नहीं है क्या सर? बाकी भी तो महिलाएं हैं इस देश की महिलाओं को, तो उसके लिए एकनाथ शिंदे जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। But is a major, Sushil ji is a major alliance of मोदी साहब। मोदी साहब ने हर मंच पे जितना एकनाथ शिंदे जी का पीठ थपथपाते हैं, शायद ही दूसरे पूरे देश में किसी और सीएम का पीठ थपथपाते हैं और तारीफ करते हैं।
he is a major ally of Modi साहब. तो मोदी साहब से बात कर सकते हैं, शिंदे साहब जो अभी रोजलिन जी ने बोला है उनसे बात कर सकते हैं कि पूरे देश में लागू की जाए, ऐसी क्या बात? पूरे देश में शुरू किया जाए, क्यों सिर्फ हमें सिर्फ महाराष्ट्र की महिलाओं को इसका बेनिफिट मिल रहा है? सभी हर महिला बराबर की है, सबका हक है। रोजलिन बहन आप निश्चिंत रहिए, महाराष्ट्र के पहले भी, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य अन्य राज्यों में भी इस तरह की, चाहे नाम अलग हो, वो योजनाएं थी, चल रही हैं और अच्छी योजनाएं हैं, और अगर जिन राज्यों में नहीं है वो महाराष्ट्र के और अच्छा सुबह व्यास साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं आप इस पर जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सवाल तफ्तीश के तहत है। अब क्या है कि वो 4 साल की बच्ची है, एक 5 साल की है और एक और भी छोटी है सर, वो उनको बोला गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड होगी उनके सामने। अब वो क्या आइडेंटिफाई करेगी? वो बोल तो चुकी है कि किसने किया है, क्या किया है। वो आइडेंटिफिकेशन परेड में अगर मान लीजिए उसने उंगली नहीं उठाई, फिर क्या होगा? तकलीफ होने वाली सर। बजाज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं ये आई नो इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चीज है सर, प्रोसीजर है, मैं मानता हूँ। कोर्ट के अंदर जाकर के प्रूव द केस, न्यायालय के सामने मैटर है और उसका प्रोसीजर न्यायालय को तय करना है। उसमें मेरा इस समय चैनल पे कुछ बोलना, आप जानते हैं, खतरे से खाली नहीं आज की तारीख में। सर आप खतरे को मोल लेते हैं, खतरे से खेलते हैं सर आप हमेशा, मालूम है। अन्य विषय पे, राजनीतिक विषय पे ले सकते हैं खतरा मोल जी, बट एनीवे आई एम सो हैप्पी टू सी योर कॉन्फिडेंस। आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जबकि राकेश शेट्टी साहब हमारे साथ नहीं है, अभी चले गए। वो तो बोल रहे हैं कि 225 सीटें आ रही हैं उनकी, MBA की तो 225 सीटें आ रही हैं सर, ऐसा कहा। वो क्यों बोल गए, किस आधार पे बोल गए? लेकिन हम तो जनता के प्रति हमारा जो काम है, हम जो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं जनता के दरबार में, हमने जो उनके प्रति हमारा जो दायित्व निभाया है, वो हमें आत्मविश्वास देता है कि हम प्रचंड बहुमत से आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक बार पुनः। लेकिन Rosalind ji, whom do you want to win, the MV or the Mahayuti? Whom do you want, Mr. Eknath Shinde back in the CM or somebody from the MVA? Rosalind ji. सर मैं उस सरकार को और उस पार्टी को चाहूंगी जो हमारी महिलाओं के लिए कुछ कर सके। बस मैं इससे ज्यादा मैं पॉलिटिकल लेवल पे बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं करना चाहती। जो वोट दोस्त मिस्टर एकनाथ शिंदे, मतलब एकनाथ शिंदे साहब को वोट गया आपका, मतलब सीधी सादी बात है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। अच्छा व्यास जी, चलते चलते 2-4 बातें कहना चाह रहा था। बोलिए सर, बोलिए। हम लोग खाली लाडली बहना योजना पर न अटके, वो तो एक योजना है। आपने देखा कि हायर एजुकेशन के लिए भी महाराष्ट्र की हमारी जो बहनें हैं, उनको अभी तक 50% उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। जब मुख्यमंत्री जी को रात को 12:30 बजे किसी ने फोन किया, कहा कि एक बच्ची जो 50% भी फीस नहीं भर पाई, उसकी वजह से उसको ड्रॉप आउट लेना पड़ा। रात को 1:45 बजे उन्होंने चंद्रकांत पाटिल जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको फोन करके कहा कल के कल पूरे महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन की फीस माफ कर दीजिए, और वो लागू हो गई। तो इसी तरह से ST जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, उसमें हमारी महिलाएं जाती हैं, उनको 50% डिस्काउंट है। ये तमाम जो महिलाओं को सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स हैं, वो मुख्यमंत्री को, चूंकि वो एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, ही वॉज ए सिंपल ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सो ही नोज द स्ट्रगल। सो जो अपने स्ट्रगल को समझते हैं, सामाजिक परिवेश को समझते हैं, और धीरे धीरे वो ऐसी चीजें लाए हैं जो हमारी बहनें सबलीकरण की तरफ, एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि बदलापुर में इंसाफ होगा, और जो सजा इस शख्स को मिलनी चाहिए, ये राक्षस जो है, जो भी पकड़ा गया है, और या जो भी प्रूव होता है कि जिसने भी किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसको जो भी सजा है कानूनी, वो जरूर मिलेगी। लेकिन चलते चलते व्यास जी, सर ये क्या है, आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं अजीत दादा पवार साहब, वो किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया अभी। कौन सा आंदोलन? अब आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति के लिए पुतला जो गिरा है। तो आपके साथ है या वो? सर वो आपके साथ है या पवार साहब के पास वापस जा रहे हैं? नाम्बियार जी और बजाज जी, आपको बड़ी विनम्रता के साथ, विथ रेस्पेक्ट, ये अजित पवार जी ने कोई युति धर्म के खिलाफ कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे माफी मांगता हूं मैं जनता से कि पुतला गिरा। तो आज मुख्यमंत्री जी ने 5 बार कहा कि शिवाजी महाराज मेरे आराध्य देव हैं,
और उनकी ये दुर्दैवी घटना हुई है। मैं एक बार नहीं, हम उनका नाम लेके राज्य चलाते हैं, उनका नाम लेके राजनीति करते हैं, एक बार नहीं 1000 बार उनके चरणों में माथा रखूंगा कि ये दुर्दैवी घटना हुई है। और हम देखेंगे कि किसी तरह से वापस एक भव्य दिव्य वापस पुतला वहां पर स्थापित किया जाए। उसके लिए एक्सपर्ट्स कमेटी बनी है और उसमें नेवी के लोग भी साथ साथ में रहेंगे। नेवी और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों की ज्वाइंट कमेटी, एक टेक्निकल कमेटी बनी है, वो उसमें जाएंगी, रिपोर्ट फाइल करेंगी और एक वापस भव्य। अजीत पवार जी ने कोई वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी आंदोलन ऐसे ही किए थे सुशील व्यास जी, आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में। सर आपको नहीं लगता कि आजकल कुछ ज्यादा ही इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं? कहीं ब्रिज गिर जाता है, कहीं इतनी बड़ी बड़े स्टैच्यूज गिर जाते हैं, कहीं हमारे मुंबई में एक बड़ा सा होर्डिंग गिर जाता है। आपको नहीं लग रहा कि आजकल कुछ चीजें ज्यादा ही गिर रही हैं? अब सुशील व्यास जी ज्योतिषी भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनको जरा देखना पड़ेगा प्लानिटरी पोजीशन क्या है। हाँ व्यास जी जरा देख लीजिए, जरा कुंडली देख लीजिए सर मुंबई की। हाँ कुछ ज्यादा ही चीजें गिर रही नहीं, घटनाएं तो जो हो रही है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उस घटना को कोई एंटिसिपेट भी नहीं कर सकता कि कब कहाँ क्या घटना होगी। जब कोई घटना होती है उसको सरकार एकदम सक्षम रूप से उसका सामना करती है और जितना भी हो सकता है उचित कदम उठाती है। अब ठीक है, ये घटना हो रही है दुर्दैवी है, लेकिन जो पुल वगैरह गिरने की बात आप कही, आपको शायद थोड़ी सी गलतफहमी है। ज्यादा पुल बिहार में गिरे हैं, में कुछ नहीं हुआ, वो मैं उस बात की मैं आपको बता सर बिहार में गिरे हैं, 17 पुल गिरे हैं। एनीवे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच रोजलिन जी, थैंक यू वेरी मच व्यास जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। Fantastic. Roslyn Khan, you came on the show for the first time. Really a pleasure talking to you. Thank you very much. थैंक यू सो मच। Namaskar to both of you. Jai Hind, Jai Hind, Namaskar. Jai Hind, Jai Hind. नमस्कार। Well, Rakesh Shetty didn't stay. He ran off to another show because he had to go to that show at 8:30. And I think Abhishek Mishra saw Rakesh Shetty and ran away. And, That's right. So I don't think because Rakesh Shetty had come very, very prepared as he always is. But my only thing is, I hope this Badlapur guy, whosoever is responsible for this, gets what he deserves. That's all that I'm concerned with. Yes. I'm not concerned with anything else. And apart from that, of course, I hope they actually implement whatever are the guidelines for girls' schools, for little girls in schools, even in co-ed schools. It's unforgivable, as Narendra Modi says. These things are unpardonable. There can be no excuses. And I think this government, Eknath Shinde ji ने बहुत सख्त policies and rules and regulations कर दिया कि right. In fact, he has involved the police also to see that these things are maintained in every schools. Now, if you got multiple agencies working on it, probably you can see justice for small children and especially the girl child. I hope so because सबसे बड़ी बात यह है साहब कि अगर स्कूल में आपके बच्चे अगर सुरक्षित नहीं हैं तो मतलब मसला जरा अजीब हो जाता है ना प्रदीप जी। बिल्कुल, absolutely. वो पेरेंट्स जो हैं कहाँ अपनी बच्ची को स्कूल में भेजेंगे? भैया बच्ची हमारी रेप हो जाती है स्कूल में, क्या है मतलब? ये क्या मतलब? And all these in a democratic process में you need to have the ruling class, the opposition, all vocal, absolutely vocal. और ऐसे incidences. No, what I am very disappointed. Everybody should have a voice and opinion on it. Pradeep ji, as far as the government is concerned, I know for a fact that now the government is going to act. There's no doubt about it. मुझे पूर्ण विश्वास है कि